شہر حیدرآباد کے دورے کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے تلنگانہ میں خاندانی سیاست، بدعنوانی اور نظم و نسق پر تنقید کی ہے۔ وزیر اعظم نے سکندرآباد ریلوے اسٹیشن پر سکندرآباد تروپتی وندے بھارت ٹرین کو جھنڈی دکھائی، بعد ازاں پریڈ گراؤنڈ پر ایک بڑے عوامی جلسے کو مخاطب کیا۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ ریاست میں خاندان اور کرپشن کا راج ہے، کرپشن کی وجہ سے ہی ہر پروجیکٹ میں تاخیر ہوئی ہے۔ مودی نے کہا کہ تلنگانہ خاندانی سیاست سے آزاد ہونا چاہیے، ریاستی حکومت عوام کو بہت نقصان پہنچائے گی۔ وزیر اعظم نے بدعنوانوں کے خلاف جنگ میں تلنگانہ کے عوام سے تعاون کی اپیل کی ہے اور بی جے پی کو آشیرواد دینے پر ریاست کو مزید ترقی دینے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ ایسے لوگ جو پریوار واد، بھائی بھتیجا واد اور بھرشٹاچار کو پوشت کرتے رہے، انہیں ایمانداری سے کام کرنے والوں سے پریشانی ہو رہی ہے۔ ایسے لوگوں کو دیش کے ہت سے، سماج کے بھلے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ لوگ صرف اور صرف اپنے کنبے کو پھلتا پھولتا دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ بھارت راشٹر سمیتی کے کارکنان نے کوئلے کی کانوں کی نجی کاری کے خلاف کریم نگر ضلع میں احتجاج درج کروایا۔ حکومت تلنگانہ نے SCCL کانوں کی نجی کاری کی مخالفت کرتے ہوئے مرکز میں برسر اقتدار بی جے پی حکومت پر غلط پالیسیاں اپنا کر تلنگانہ کی ترقی کو روکنے کی سازش رچنے کا الزام عائد کیا ہے۔ بیاض قائدین نے آج ریاست گیر سطح پر مہا دھرنا منظم کیا۔ کریم نگر، راما گنڈم، بھدرادری، کوتاگوڑم سمیت کئی اضلاع میں اس کے خلاف بیاض کیڈر کا احتجاج دیکھا گیا۔ قائدین نے الزام عائد کیا ہے کہ SCCL کو خانگی آنے سے تلنگانہ میں نوجوانوں کے روزگار کے مواقع متاثر ہو سکتے ہیں۔ حکومت تلنگانہ نے ریاست میں دکانات اور تجارتی ادارے ہفتے میں 7 دن 24 گھنٹے کھلے رکھنے کی اجازت دے دی ہے۔ تلنگانہ بھر میں اب دکانات اور تجارتی ادارے رات بھر کھلے رہیں گے۔ اس سلسلے میں گزشتہ روز احکامات جاری کیے گئے ہیں جو کہ تلنگانہ شاپس اینڈ اسٹیبلشمنٹ ایکٹ 1988 کے تحت رجسٹرڈ تمام اداروں کے لیے نافذ العمل ہیں۔ لیبر ڈپارٹمنٹ کی اسپیشل چیف سیکرٹری رانی کمودی نے احکام جاری کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ تمام ملازمین کو شناختی کارڈ دیے جائیں گے۔ علاوہ کام کے اوقات کار پر بھی عمل کیا جائے گا۔ اوور ٹائم کرنے پر الاؤنس دینے اور خواتین ملازمین کو حفاظتی اقدامات کے ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹ کی سہولت بھی فراہم کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ تلنگانہ ریاستی وقف بورڈ میں خدمات انجام دے رہے ملازمین نے ان کی خدمات کو باقاعدہ بنانے پر حکومت تلنگانہ AIMIM صدر بیسٹ اسد الدین اویسی اور وقف بورڈ سے اظہار تشکر کیا ہے۔ وقف بورڈ صدر نشین محمد مسیح اللہ خان کی صدارت میں سال 2023 کا پہلا وقف بورڈ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں کئی اہم امور پر بات کی گئی۔ وہیں عرصہ دراز سے کانٹریکٹ اساس پر خدمات انجام دے رہے 43 ملازمین کی خدمات کو مستقل کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ خدمات باقاعدہ بنانے پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے ان ملازمین نے آج وقف بورڈ چیئرمین محمد مسیح اللہ خان، وقف بورڈ انچارج CEO خواجہ معین الدین، صدر AIMIM بیسٹ اسد الدین اویسی، وقف بورڈ اراکین اکبر نظام الدین اور مولانا سید ابوالفتح بندگی پاشا کی گلپوشی کرتے ہوئے ان سبھی کا شکریہ ادا کیا۔ یاد رہے کہ ان 43 ملازمین کی تعلیمی قابلیت اور اہلیت کی بنا پر ان کی خدمات کو باقاعدہ بنانے کے لیے مسلسل توجہ دلائی جاتی رہی ہے۔ ماضی میں کئی عہدیدار وقف بورڈ صدر نشین کے عہدے پر فائز ہوئے ملازمین کی خدمات کو باقاعدہ بنانے کا وعدہ کیا اور چل دیے، تاہم وقف بورڈ رکن مولانا سید ابوالفتح بندگی پاشا کی کامیاب نمائندگی اور وقف بورڈ صدر نشین محمد مسیح اللہ خان کی خصوصی دلچسپی کے سبب یہ کام ممکن ہو پایا ہے۔ سبھی ملازمین نے اس فیصلے پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔
ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल के सदर मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन खादरी ने तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सरबराह रेवंत रेड्डी की दावत इफ्तार को एक फ्लॉप शो करार दिया है। टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी की जानिब से खुले कुतुब शाह स्टेडियम में दावत इफ्तार का नज़्म किया गया था। सदर ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल ने दावत इफ्तार के एहतमाम पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि सदर कांग्रेस ने मुसलमानों के किसी भी मसले का जिक्र नहीं किया और न ही किसी मुसलमान को अपने मसाइल बयान करने का मौका दिया गया। इफ्तार पार्टी एक फ्लॉप शो थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भी BRS के नक्श कदम पर चल रही है। दोनों जमातें मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी समझ रही हैं। मौलाना सूफी खैरुद्दीन खादरी ने कहा कि मुसलमानों को ये समझ लेना चाहिए कि दावत इफ्तार से उन्हें बहलाने की नाकाम कोशिशें की जा रही हैं। कल यानी 7 अप्रैल को खुले कुतुब शाह स्टेडियम में कांग्रेस कमेटी के जो सदर हैं रेवंत रेड्डी साहब की तरफ से एक बड़ी दावत का एहतमाम किया गया और जिसमें शहर के कुछ मुअज़्ज़िज़ीन को भी मदऊ किया गया और पुराने शहर में इनकी ये दावत इफ्तार रखने का कई गोशों से खैर मकदम किया गया कि ये आज रेवंत रेड्डी साहब ठोस जो ना ऐलानात करेंगे, मुसलमानों के मसाइल पर रोशनी डालेंगे। लेकिन मायूसी हुई क्योंकि जब से रेवंत रेड्डी साहब ने सदर कांग्रेस का ओहदा संभाला है उस वक्त से ये देखते आ रहे हैं कि वो BRS सरकार के नक्शे कदम पर हैं और कभी उनकी जबान पर मुसलमानों के मसाइल कभी भी नहीं आए और ना उन्होंने आवाज उठाया और ना हुकूमत से नुमाइंदगी की। ये बात साफ जाहिर है, जबकि मैं खुद उनसे 3 मरतबा मुलाकात किया और उनको याददाश्त पेश किया कि मुसलमानों के ये अहम मसाइल है, लेकिन उन्होंने कभी उसको संजीदगी से नहीं लिया। और कल भी जो दावत इफ्तार में वहाँ पर जितने लोग जमा थे ये तवक्को कर रहे थे कि रेवंत रेड्डी साहब मुसलमानों के कुछ मसाइल को उजागर करेंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ शुक्रिया अदा करने तक ही अपने आप को महदूद BRS कॉर्पोरेटर राशिद मोहम्मद ने रमजान तोहफे तकसीम करने के बाद हुकूमत तेलंगाना के इस इक़दाम की भरपूर सितारिश की है। चिंतर डिवीजन के विवेकानंद नगर शहाबुद्दीन बस्ती नूर मस्जिद में डिवीजन के सीनियर कायदीन के हमरा कॉर्पोरेटर राशिद मोहम्मद ने रमजान तोहफे की तकसीम की। वज़ीर आला KCR और उनके फलाही इक़दामात की सितारिश करते हुए कॉर्पोरेटर ने कहा कि CM KCR वो वाहिद चीफ मिनिस्टर है जो अक़लियतों की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए कोशा है। रियासत में अक़लियतों के लिए फराहम की जा रही सहूलियात का भी उन्होंने जिक्र किया और इसे मिसाली करार दिया। सीनियर कायदीन शेखर राव, प्रभाकर गुप्ता, स्वर्ण लता रेड्डी के अलावा दीगर भी उनके हमरा मौजूद थे। हल्का असम्बली चंद्रानगुटा के AIMIM रुकन असम्बली अकबरुद्दीन ओवैसी ने हाशिमाबाद में मुनक़्क़िद दावत इफ्तार में शिरकत की। चंद्रानगुटा असम्बली हल्के के हाशिमाबाद मस्जिद क़ादरिया के करीब शानदार पैमाने पर दावत इफ्तार का नज़्म किया गया। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी जो माह रमज़ान के आगाज़ से ही अवाम के दरमियान रहकर रोज़ा कुशाई कर रहे हैं, इस दावत इफ्तार में शरीक हुए। इस मौके पर कॉर्पोरेटर अब्दुल वहाब, पार्टी के सीनियर कायदीन, कारकुनान, मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद भी मौजूद थी। बॉलीवुड अदाकारा करिश्मा कपूर के हाथों किंग्स गार्डन में दावत रमजान एक्सपो का इफ्तिताह अमल में आया है। टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा की बहन अनम मिर्जा इस दावत रमजान एक्सपो की मेजबानी कर रही हैं। दावत रमजान के चलते अवाम को हमा अक़साम की अशिया एक ही छत तले दस्तयाब रहेंगी। करिश्मा कपूर ने हैदराबाद की अवाम को माह रमजान में राग़िब करने वाले इस सबसे बड़े एक्सपो का इफ्तिताह करने पर मसरत का इज़हार किया। इस मौके पर अनम मिर्जा, उनके शौहर असदुद्दीन के अलावा हैदराबादी अदाकार शहबाज खान व दीगर भी मौजूद थे। यहाँ आके मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है कि मेरा जो करियर की जो शुरुआत थी वो यहाँ हैदराबाद से शुरू हुई थी। रामा नायडू फिल्म्स में, जुबली हिल्स में रामा नायडू स्टूडियो से। तो मेरा जो रिश्ता है हैदराबाद से और हैदराबाद के वासियों से बहुत सालों से है और मुझे बहुत प्यार है आप सबके लिए।
सुधा वेंचर्स, अहिबा और SBMS के इश्तराक से नेशन वाइड ब्राइडल मेकअप कॉम्पिटिशन मुनक्किद किया जा रहा है। नेशन वाइड ब्राइडल मेकअप कॉम्पिटिशन के मुंतजमीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। उन्होंने बताया कि सिकंदराबाद के क्लासिक गार्डन में ये कॉम्पिटिशन 29 और 30 अप्रैल को मुनक्किद किया जा रहा है। इन मुकाबलों का आगाज़ तो शहर हैदराबाद से हो रहा है, लेकिन मुल्क की तमाम रियासतों के 3 मकामात पर ये मुकाबले मुनक्किद किए जाएंगे। ब्यूटी इंडस्ट्री से वाबस्ता लोगों के लिए इन मुकाबलों के जरिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया करवाया जा रहा है। मुंतजमीन ने ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से जल्द अज जल्द रजिस्ट्रेशन करवाने की ख्वाहिश की है। SBMS के शरीक बानी रघु रेड्डी, एंथोनी डेविड, M सुधा वो दीगर इस मौके पर मौजूद थे। मिसेस यूनिवर्स 2019, आई एम सुधा वेंचर्स फाउंडर। आज हम लोग सब गैदर हुए हैं कि इसलिए कि नेशनल वाइड ब्राइडल कंपटीशन के लिए ये प्रेस मीट है। ये कंपटीशन हैदराबाद से शुरू होता है। सेमीफाइनल ऑल ओवर इंडिया में एवरी स्टेट्स में 3 जगह में होएगा। फाइनल हैदराबाद में ही होने वाला है। जो भी ब्यूटी इंडस्ट्री से है, जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है अपना टैलेंट शोकेस करने के लिए, आप ज़रूर ज्वाइन हो जाइए। और जिसका स्टूडियो से एक्सपर्ट से आप लोगों के लिए भी प्लेटफॉर्म में अपना और बिजनेस एस्टैब्लिश करने के लिए जूरी जैसे आप ज्वाइन हो सकते हैं। MS पर्ल्स एंड ज्वेलर्स की जानिब से बियास के सीनियर रहनुमा MK बदरुद्दीन की उम्रा रवानगी पर उन्हें तहनीत पेश की गई है। BRS लीडर व प्रोपराइटर MS पर्ल्स एंड ज्वेलर्स मोहम्मद हाजी ने MK बदरुद्दीन की उम्रा रवानगी पर उनकी गुलपोशी की और उन्हें मुबारकबाद पेश की। उनके हमरा बियास के स्टेट सेक्रेटरी जहांगीर शरीफुद्दीन, बियास के साबिक सेक्रेटरी के अलावा दिगर कायदीन जैसे मोहम्मद अब्दुल बासित, मुबशिर, अहमद पिरान और गौस ने भी उम्रा रवानगी पर MK बदरुद्दीन को मुबारकबाद पेश की है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्लाह का फजल व करम से और उम्रा की रवानगी है और बड़ा भाई का साथ है, बासित भाई, शरीफ भाई और हमारे जहांगीर भाई, हाजी भाई, एंड ब्रदर्स, आप सबका अगले तौफीक से सबके लिए मैं दुआ करूँगा। इंशाल्लाह आप लोग भी दुआ करिए। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस एक बार फिर तबाही मचा रहा है। 24 घंटों में कोरोना वायरस के सबब 13 अफराद की मौत हुई है। मरकजी सेहत महकमे के जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक 6155 नए केसेस गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रिपोर्ट किए गए हैं। एक्टिव केसेस की तादाद 31,194 हो गई है। हैरानकुन बात यह रही है कि इनमें से 38% केसेस कोरोना के नए वर्जन XBB 1.16 के बताए गए हैं। अलावा 7 दिनों में 59 अमवात भी रिकॉर्ड की गई हैं। मुल्क की 8 रियासतों में सबसे ज़्यादा कोरोना केसेस दर्ज किए जा रहे हैं। वज़ारत सेहत महकमे ने जनूबी हिंद की रियासत केरला, महाराष्ट्र, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और हरियाणा में कोरोना के सबसे ज़्यादा केसेस दर्ज किए जाने की इतला दी है। मुल्क में मुतासिरीन की कुल तादाद 4,47,51,259 हो गई है और मरने वालों की तादाद 5,30,954 तक पहुँच गई है। इस अरसे में यानी 24 घंटों के दौरान 3,253 अफराद सेहतयाब हुए हैं और सेहतयाब होने वालों की तादाद बढ़कर 4,41,79,111 तक पहुंच गई है। मुल्क में कोरोना टीका अंदाजी मुहिम भी जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,963 अफराद को कोरोना टीका लगाया गया है और अब तक 220,66,22,663 अफराद को कोरोना टीके दिए जा चुके हैं। कोरोना के बढ़ते मामलात को देख मरकजी हुकूमत ने रियासती हुकूमतों को कोरोना से ज़्यादा मुतासरा मकामात की निशानदही करने, कोरोना टेस्ट में इजाफा करने की हिदायत जारी की है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल,
जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।